दोस्तों आजकल देखने में ये मिल रहा है कि नेतागण अधिकारीगण जगह जगह दौड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं जागरूकता अभियान चला रहा हूं, लेकिन सच में इतना ही जागरूकता अभियान अगर जरूरत है तो सबसे पहले हमारे नेतागण और हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको जागरूकता अभियान की जरूरत है। क्योंकि मैं आज जिस क्षेत्र का आप सभी को दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों, लाखों बार इस क्षेत्र का विजुअल्स आप सभी के समक्ष साझा कर चुका हूं। मैं इस समय मौजूद हूं जयगांव एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के हांसी मारा झोड़ा के बगल में, और इस क्षेत्र को जोड़ता है ये हांसी मारा झोड़ा छोटा मेचा बस्ती को और डाणा गांव का बर्मन पारा को। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि इस क्षेत्र में जो ये हांसी मारा झोड़ा है इस पे बांध की काफी आवश्यकता है। यहाँ पे काफी सारे स्थानीय निवासी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा और ये भी दृश्य में दिखाऊंगा कि प्रशासन के तरफ से कहाँ चूक हो रही है। चलते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार काकी। नमस्कार काकी, बोलें কি বলতেছে? অঞ্চলের মানুষ দেখে যায়, গ্রামের পঞ্চায়েত দেখে বান হয় না। পঞ্চায়েত আসে, হ্যাঁ আসে, প্রধান আসে, আসে আর দেখে নিয়ে যায়, দেখে নিয়ে যায়, ভিডিও আর সবাই আসে, সবাই আসে, মিডিয়া আসে, ভিডিও আসে। আচ্ছা কিছুদিন আগে তো দেখলাম ডিএম আসছিল, ভিডিও আসছিল, কি খালি দেখায় স্যার, হয় খালি দেখাই হয়, দেখাই হয়, কাজ হয় না। আচ্ছা আর কি কিছু কথা আসলে আমাদের কত মুশকিল হয়। আচ্ছা এই দিক থেকে ওই দিক যাইতে পারি না, কত অসুবিধা হয়ে যায়। ভাঙা বাড়িতে আসলে এই যে বড় বড় আধিকারিকগণ আসে, ডিএম আসে, বিডিও আসে, এই জায়গা যে বাঁধের দরকার আছে, মানুষ বারে বারে এটা দাবি করে, কি 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 বলে, এরা কি বলে? কিছু বলে না, ওই বলে হবে হবে কোটা কিছু বলে না। আসে মিডিয়াতে ফটো তুলে চলে যায়, ফটো তুলে চলে যায়। আচ্ছা আর এই সমস্যাটা কত পুরানো সমস্যা, মানে কত বছর? অনেকদিন পুরানো, আমরা তো 20 বছর থেকে ভোট দিছি, 20 বছর থেকে আমি দেখতেছি এই রকমই। আচ্ছা আর এদিকে কি মানে বৃষ্টির দিনে কি হয়, বানধানের জন্য কিছু বৃষ্টির দিনে বানধান এদিকে হয় না, এই বোরা ঠোরা লাগায় কি? এদিকে কিছু হয় না, কিছু হয় না, ওইটাও হয় না, এটাও হয় না। আচ্ছা না কেউ বলতেছিল কি 100 দিনের লেবার লাগায় বানধান, ওই বাঁশ টাস লাগায়। আচ্ছা একটু একটু হয়, ওইটা দিয়ে তো বাঁচে না, ওইটা তো বৃষ্টিতেই চলে যায়, ও ওইটাও চলে যায়। কাকির নাম কি? আমার নাম আকমি বিবি। আচ্ছা হ্যাঁ কাকি আপনি কিছু বলতেছিলেন, বলেন। আমি বলতে চাই আমাদের ওইদিকে আপনি একটু আসেন, আমাদের ওইদিকে দেখেন। হ্যাঁ চলেন না, আমি দেখাবো খেরকিটি যাতায়াত করে আমরা 2 বছর। হ্যাঁ আমি আগেবারও দেখছিলাম, আগেবারও আসছিলাম, আজকেও যাব। আগে এদিকের একটু কিছু লোকের সঙ্গে কথা করে নি। লোকের সাথে করেন, আমি ওইদিকেও কথা বলবো। হ্যাঁ আমি মনে করি যে দেখেন ওই দিন আমি ব্লক প্রেসিডেন্ট নিয়ে আসছি, যেটা আমার মেম্বার করে নাই সেটা আমি করছি। আমি ব্লক প্রেসিডেন্ট নিয়ে আসছি, নিয়ে আসার পরে অনেক পাবলিক জড়ো হচ্ছে, আমাদের যেটা কর্তব্য ছিল আমরা ওইটা করতেছি। এবং আমি মাস পিটিশন দিছি, আমি জেডিওতে, আমি কোনো মেম্বার না, আমি সাধারণ মহিলা। জেডিএতে কি বলে আপনি? মাস বলছে যে জেডিও মনে করছে সরকারি যে আলিপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসে পারতো, উনি এসে বলছে যে 100 মিটার বান আমি একদম তাড়াতাড়ির মধ্যে করব। তারপরে আমাদের মেম্বার নাকি বলছে ফোন করে যে এখানে আমাদের গ্রামে কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয় নাই না। আচ্ছা তারপরে আমি মাস পিটিশন দিতে গেছি, রিসিভ করে না। আচ্ছা তারপরে আমি বলছি কেন আপনি রিসিভ করবেন না, বলে যে নিচে অফিসার আছে তার কাছে রিসিভ করতে। আচ্ছা খালি রিসিভ, আচ্ছা কাগজটা রিসিভ করাই নিছেন? আমি রিসিভ করাই নিছি, কেন যে আমি দিলাম কি দিলাম না প্রমাণ আমার কি? হ্যাঁ কিন্তু রিসিভ করার পরে তো এটা ফাইলে ঢুকে যায়, কাজের জন্য কিছু হইছে? কিছু হয়নি। কতদিন আগে আপনি এই কমপ্লেনটা দিছিলেন? এই কমপ্লেনটা দিছি আমি 3 মাস হলো। 3 মাস হয়ে গেছে? 3 মাস হয় নাই, এই 1.5 মাস হলো। আর ব্লক প্রেসিডেন্ট এসে নিয়ে যাওয়ার মনে করো 2 সপ্তাহ হয় নাই। আচ্ছা তো কি কিছু বলছে, মানে এদিকে কাজ টাজ হবে বলছে? না উনি বলছে যে আমি চেষ্টা করব। চেষ্টা তো আমার মনে হয় অনেক বর্ষ থেকে চেষ্টা চলতেছে। 2013 থেকে করতেছে। আমাদের যে মেম্বার আছে উনি 10 বছর থেকে মেম্বারই। মমতা ছিল 5 বছর, এবং মনে করো টিম সিটি হওয়ার হলো 5 বছর, 10 বছর হলো। 2013 তে উনি দাঁড়াইছে। মেম্বারও চেষ্টা করতেছে, প্রধানও চেষ্টা করতেছে, সবাই চেষ্টাই করে যাইতেছে, কিন্তু কাজ হইতেছে না, বাঁধ হইতেছে না। কাকির কি নাম?
আমার নাম মমতা খাতুন। আচ্ছা, আমাদের এদিকে একজন কাকা আছেন, কাকা থেকে কথা করি। নমস্কার কাকা, আপনি বলতে পারবেন না? আচ্ছা, আপনি বলেন। দেখেন, আমরা আপনাদের গ্রামে আজকে আসছি, আমাদের একটা স্টার্ট করছি, একটা মানে শৃঙ্খলা স্টার্ট করছি দুয়ারে সোমবার। সবাই তো দুয়ারে দুয়ারে যাইতেছে, আমরাও চিন্তা ভাবনা করলাম কি লোকের দুয়ারে দুয়ারে যায় খবরটা নিই কি কি অসুবিধাটা আছে, তাই না? তাই জন্য আপনাদের দুয়ারে আসছি, আজকে আপনাদের গ্রামে আসছি। এই যে এই জায়গার যে সমস্যাটা অনেক দিন থেকে আমরা কভার করতেছি, কিন্তু আজকে খালি কথা করব আপনাদের সঙ্গে কি আপনাদের কি সমস্যা আছে এটা জানান। সমস্যা এটাই কি বানটা ওই যে দেখে যাচ্ছে, হচ্ছে না, বারবার দেখে যাইতেছে, হইতেছে না। কে কে আসলো একটু জানান। এখানে সবাই আসছিল, সবাই আছে, সেক্রেটারি থেকে নিয়ে আকারে ভিডিও সবাই আসছিল, সবাই আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ডিএমও আসছে, আমি তো কিছুদিন আগে খবর দেখলাম, ডিএমও আসলো। ডিএমও আসলো, কি বললো ওরা? দেখে কি চেষ্টা করতেছি, হয় না, চেষ্টা করতেছি, এই চেষ্টাটা চলে যাইতেছে, কিন্তু কাজ আর হইতেছে না। কাকার কি নাম? আবুল হোসেন। बारी कोথায়? बारी जैसे। अच्छा, और दोस्तों इसी तरह से काफी लोगों के साथ बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी के समक्ष में ये भी विजुअल साझा करेंगे कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। ये जो जनता है, यहाँ के जो निवासी है, इस क्षेत्र में जो रहते हैं, सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, वोट भी देते हैं, सरकार भी बनाते हैं, प्रशासन की भी भूमिकाओं में शामिल होते हैं, जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ वहाँ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं को देखा जाता है, सुना जाता है, लेकिन कार्य नहीं होता। तो मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि आखिर ये दौरा का जो सिलसिला है, जो नेतागण हुए, जो अधिकारीगण हुए, जो दुआरे दुआरे जा रहे हैं, जागरूकता अभियान का कर रहे हैं, केवल जागरूकता अभियान ही चलाने से क्या ये जो समस्याएं हैं, ये जो बांध की यहाँ जरूरत है वो ठीक हो जाएगा कि यहाँ पे कार्य करने की भी जरूरत है। और दोस्तों आपको ये भी विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। दोस्तों एक तरफ यहाँ पे ग्रामीण लोगों को तकलीफें हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूटी को लेके जाना पड़ रहा है, बच्चे इस पे बैठे हुए हैं, और आप सोच सकते हैं कि ये सड़क जो है ये एक कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, बांध के ऊपर है, लेकिन बांध टूटा हुआ है। आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफें हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में। और आपको ये भी विजुअल्स हम दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन द्वारा जब कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ बिल्डिंगें बनती हैं, कुछ कैंपस बनता है प्रशासन द्वारा, वो अगर खतरे में पड़ जाए तो उसको बचाने के लिए प्रशासन दिन रात एक कर देती है, दिन रात एक कर देती है। इसका विजुअल्स भी आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। प्रशासन से जब हम लोग सवाल जवाब करते हैं कि ये जनता है, यहाँ पे इनको तकलीफें हो रही हैं, तो उस समय बोलते हैं ना भैया, इमरजेंसी में कोई काम नहीं होता है, एक्शन प्लान में डालना पड़ेगा। मैंने ये सवाल रखा था, हमारे माननीय बीडीओ साहब के पास ये सवाल रखा था कि बारिश का दिन आ गया है, जगह जगह बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, जगह जगह पानी जमावड़ा हो रहा है, कहीं कहीं बांध की प्रॉब्लम है, नदियों की प्रॉब्लम है, इमरजेंसी का काम में आप क्या कर रहे हैं? तो बहानेबाजी होता है कि इमरजेंसी बोल के कोई फंड नहीं होता, इमरजेंसी बोल के कोई फंड नहीं होता, इमरजेंसी बोल के कोई कार्य नहीं होता, एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। ये जनता का बचाने के लिए, इनको इंसाफ के लिए और इनके जो तकलीफों को हल करने के लिए कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है, कोई इमरजेंसी बजट नहीं है। लेकिन सरकार की जो इमारतें बनती है ना दोस्तों, सरकार का जो ढांचा बनता है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, मैं दिखाऊंगा उसका भी दृश्य। वो अगर बारिश के चपेट में आती है, वो अगर बाढ़ के चपेट में आती है, तो रातों रात कार्य होना शुरू हो जाता है। इसका दृश्य मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। जेडीए द्वारा बनाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट खतरे में है। वहाँ की जो बरसाती बारिश है वो साइड से जमीनें काट के ले जा रही है, तो उसको बचाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्य चल रहा है। जेसीबी लगा के नदी को काटा जा रहा है ताकि पानी को डाइवर्ट किया जा सके और वहाँ पे उसको बचाया जा सके। वो जो कैंपस बना है अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का जो वहाँ पे
कैंपस बनाया गया है, प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ है बुलन टर्निंग पे, वो अभी तैयार नहीं हुआ है। और कहीं तैयारी होने से और खुलने से पहले ही कहीं नदी में ना समा जाए, उसको बचाने के लिए प्रशासन जेसीबी लगा के नदी को काट के उसको बचाव का कार्य कर रही है। उस समय इमरजेंसी का काम के लिए आपको बजट नहीं चाहिए, उस समय इमरजेंसी के लिए एक्शन प्लान नहीं चाहिए। इरादा अगर हो तो सब संभव है, अगर इरादा ही अगर ना हो तो ये जनता है, जनता का काम है केवल वोट देना, जनता का काम है केवल सरकार बनाना और उसके बाद भूल जाना, क्योंकि प्रशासन भी उसके बाद सो जाती है और जनता को भी कहा जाता है कि आप भी सो जाइए, जब प्रॉब्लम होगा तो हम आएंगे, देखने जरूर आएंगे, आश्वासन देंगे, वादे करेंगे, लेकिन भरोसे में जीने का आदत हो गया तो उसी तरह से चलते रहिए। आगे भी मैं जाऊंगा, आगे भी मैं दृश्य दिखाऊंगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप सभी को और भी दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों काफी सारी जरूरतें लोग, यहाँ के स्थानीय लोग खुद ही हल करते हैं। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ब्रिज देखने को मिलेगा हासीमारा झोड़ा के ऊपर। ये कोई सरकारी ब्रिज नहीं है दोस्तों, ये ग्रामवासी खुद आने जाने के लिए बनाए हैं। और यहाँ पे मरम्मत का भी जो कार्य होता है दोस्तों, यहाँ पे आसपास आप देखेंगे कि सीमेंट की बोरिया में मिट्टी भर भर के रास्ते को ठीक किया गया है। यहाँ पे भी कुछ हद तक ग्रामीण लोग खुद ही करते हैं। हाँ, ये भी बात है कि कभी कभी आपको ग्राम पंचायत के मनरेगा के कार्य के तहत भी 100 दिन के रोजगार के तहत भी यहाँ पे इमरजेंसी में कुछ इस तरह का बचाव का कार्य होता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, ये जो सड़क देख रहे हैं, ये मैं हासीमारा झोड़ा के ऊपर से गुजर रहा हूँ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कितना खतरनाक है दोस्तों कि बारिश के दिन में यहाँ पे किस तरह से लोग रहते होंगे, ये सोचने वाली बात है। और जब लोगों की समस्याएं होती है, जब नेतागण और अधिकारीगण के पास ये जनता जाती है तो उनको आश्वासन दिया जाता है, आते हैं, ना नहीं करते हैं, आते हैं, दौरा करते हैं और बोलते हैं हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो देख रहे हैं। और ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे आशा टिकटिकाए हुए बैठे हैं कि प्रशासन और नेतागण उनके लिए कुछ करेंगे। और यही आशा के साथ दिन बीत जाता है, यही आशा के साथ महीने और साल बीत जाता है, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या अवस्था है। हासीमारा झोड़ा के दोनों के तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से ये हासीमारा झोड़ा जो है ये एक बरसाती नदी है जो कि नाले भर रह गई है, क्योंकि प्रशासन इसके ऊपर कोई उचित पहल नहीं करता कि इसको मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से ये नदी का जो पानी है बढ़िया से जा सके और लोगों का घर इस हासीमारा झोड़ा में समाता जा रहा है। किसी तरह से भी लोग प्लास्टिक तिरपाल लगा के अपना आशियाना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी काम के लिए जब आप कहेंगे तो भैया एक्शन प्लान में डालना पड़ेगा, बजट आना पड़ेगा, बजटें नहीं है। और उसके बाद शुरू होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड का सिलसिला कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है। ये जो जनता है ये टैक्स भरती है, ये जो जनता है वोट भी देती है, सरकार भी बनाती है, लेकिन इनको ये जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। और इस तरह की जो समस्याएं होंगी उसको जयगो मिरर्स दिखाएगा और विजय कुमार गुप्ता वहां पर पहुंचेगा, चाहे लाख कार्रवाई हो जाए, लाख धमकियां हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, चलता हूँ, बात करता हूँ। काकी आपने किचु बोलबेन? आपनेर बाड़ी এটা বাড়ি কার এটা? আচ্ছা দিদি আপনার বাড়ি এই যে দেখতেছি আপনার বাড়ি তো একবারে নদীতে চলে যেতেছে, এই যে হাসিমারা ঝোড়া যেটা আছে নদীতে চলে যেতেছে। কেউ কি প্রশাসনের লোক, বিডিও, ডিএম এরা আসছিল? কিছুদিন আগে তো আমি দেখছিলাম আসছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হয় নাই মনে হয়? দেখা হয় নাই আমার সঙ্গে এরকম না। আচ্ছা আচ্ছা, কি ওরা আসলে লোকাল নেতারা তো আসে মনে হয়? আচ্ছা, কাজটা কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে হয় যায়, কেন এই যে বাচ্চাদের দিন তো নামিয়ে গেল। হ্যাঁ, কতদিন থেকে এই সমস্যাটা আছে? কতদিন? 2 বছর।
2 বছর হয়ে গেছে আপনার এই সমস্যাটা। বাচ্চা নিয়ে থাকে হচ্ছে ভাঙা এরকম। হ্যাঁ, কিন্তু কাজ হইতেছে না। এই বৃষ্টি তো এখন বৃষ্টির দিন শুরু হইতেছে। শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে তো এখন যদি জোর করে বৃষ্টি হলে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে। মুশকিল আছে। মুশকিল আছে, বৃষ্টি আসলে তো থাকা মুশকিল আছে। আচ্ছা, এখন যে দেখা যাইতেছে প্রশাসনিক যদি তাড়াতাড়ি করে দেয় তাহলে ভালো। তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, দাদা আমরা থাকা মুশকিল হবে, বাচ্চা নিয়ে একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে কি করবে, কিভাবে থাকবে এখানে? থাকার ব্যবস্থা হইতেছে। অসুবিধা হচ্ছে, একটা বাচ্চা নিয়ে একেবারে এরকম একটা নদী। কি নাম আপনার? আমার নাম মেঘনা। अच्छा, ठीक है। और दोस्तों, कभी कभी कुछ इस तरह के सुनसान गलियों से भी होकर गुजरना पड़ता है ताकि जनता का जो जरूरत है, जनता की जो आवाजें हैं वो बुलंद किया जा सके। आप सोच सकते हैं किस तरह की गली से मैं गुजर रहा हूँ और काफी मुश्किल से इस गली से गुजरना पड़ रहा है और आगे भी इसी तरह से आगे भी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और इसी तरह की गली से ही लोग जाने आने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो यहाँ से बगल से जो रास्ता था आप देख सकते हैं, लोगों को यहाँ से खिड़की के सहारे यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, खिड़की के सहारे यहाँ से निकलना पड़ रहा है जाने आने के लिए और काफी मुश्किल से यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। और दोस्तों, शाम हो रहा है, अंधकार हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आप सभी के समक्ष ये दृश्य साझा कर रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को यहाँ समस्याएं हैं और बातें ये भी करूँगा कि यहाँ के जो एक परिवार है उनसे भी बात करूँगा। काकी, আপনার বাড়ি এটা না? আমাদের বাড়ি। আচ্ছা, কেমন সমস্যা আছে এই জায়গায়? আমাদের দেখো না কি সমস্যায় আমরা পড়ে গেছি, আমাদের রাস্তাঘাট নাই, নদীর বান হইতেছে না, হ্যাঁ, সরকার কিচ্ছু কেরাই করতেছে না, যে আমরা কি নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কিরকম করে বাঁচবো এখানে এইরকম করে। আজ 2 সাল 3 সাল থেকে এইরকম চলতেছে। আমরা তো শুনি যে সরকার ঠিকই দেয়, সরকার ঠিকই দেয়, আমাদের দেয় না। শুনি যে দিদি যে সবই দেয়, আমরা কেন পাই না? আমরা কেন পাই না? আচ্ছা, এখন তো দেখতেছি নেতাগণ সবাই সবাই অধিকারীগণ আসতেছে, আসতেছে, দেখতেছে, কোনো ক্রাই করে না, কি করবে না করবে। বর্ষা তো এসে গেছে, হ্যাঁ, বর্ষার মধ্যে আমরা কিরকম করে বাঁচবো? কি বলে আসলে কি বলে? আসলে বলে যে হ্যাঁ এটা পাস হয়েছে, হবে হবে, কবে হবে পাস কিন্তু হইছে? না। এরকম করে বলে পাস হইছে বলে? হ্যাঁ, আচ্ছা, দেয় আর না। এটা আজকে মনে হয় ব্রিটিশ সমিতি বলতেছে যে কি করবো আমরা? এখন তো বৃষ্টি দিন চলে আসছে, এই যে আপনার বাড়ির যে অবস্থা দেখতেছি, আইনে সবারই দেখালাম যে দাদা দেখেন আমাদের কি পরিস্থিতি। আমাদের যে পঞ্চায়েত আছে, পঞ্চায়েত আসে কি করে, 2টা বাস 2টা বোরা দেয়। আমরা বলি না যে পঞ্চায়েত আমার থেকে তো পঞ্চায়েত দেয় না। এরকম বড় কাজ তো পঞ্চায়েত থেকে তো করতে পারে না, এটা তো কিন্তু হ্যাঁ, এইটা কিন্তু করতে চেষ্টা করলে এটা করা যায়, যদি তাই না? চেষ্টা চেষ্টা করে করলে না, তো অনেক কিছুই করা যায়। চেষ্টা করে না তার কি করবো আমরা? আমরা যদি এরকম করে বাইসে আছি, যখন ভোট আসে তখন দিদি ভোটটা আমাকে দেন, দিদি ভোটটা আমাকে দেন, ভোট দেবো, কিন্তু আমাদের তো কাজ করে দিতে লাগবে না? কে আমাদের তো কাজ হয় না? এখন তো আবার পঞ্চায়েতে ইলেকশন চলে আসছে আইসা গেছে, 2013। যত যদি বান হয় একদিকে, আমার রাস্তাঘাট যদি হয় আমরা ভোটে যাবো, আর যদি রাস্তাঘাট হবে না আমরা ভোটে যাবো না। ভোট বয়কট থাকে। এখন তো নেতারা আসবে আপনাদের কাছে, এখন তো আসতেছে, বুঝ দিতেছে, ওই পুজো হবে না তো বান হবে আমরা ভোট দেবো, এই যে রাস্তাঘাট না হলে আমরা ভোট দিতে যাবো না। আপনার নাম কি? রোশনা খাতুন। আচ্ছা কাকি, আপনি কিছু বলতেছিলেন, আপনার বাড়িটা কোনটা? ওই যে প্লাস্টিক আচ্ছা, এই যে তিরপাল গুলা লাগানো আছে, কালোটা না নীলটা? নীলটা আর কালোটা। আচ্ছা, আর নীল বাড়িতে যাওয়ার কেমন করে যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিক ওই যে থেকে? দেখেন না সামনে কি এরকম রাস্তাতেই যাওয়া আসা হয়? হ্যাঁ, কি করবো, আমাদের তো এরকম করে যাইতেই লাগবে, উপায় নাই। যদি ইচ্ছা করতো মেম্বার আচ্ছা। অনেক কিছু করতে পারতো, বস্তা দিয়েও 100 দিনের লেবার দিয়ে উনি রাস্তা বানাই দিতে পারতো। দেখুন আমরা এগুলো নিজে করছি, নিজে করে চলাফেরা এগুলো আমরা করছি। নিজে চালে বস্তা কিনে লাগবে না? নিয়ে আসে বানাই। আমার তো করতে আমি লাগবে 30টা এটা। বস্তা নিয়েছিলাম, ওই যে আমার দশের মধ্যে দেখতেছেন বস্তাগুলো দিচ্ছি, ওগুলো কালকে হ্যাঁ। দিচ্ছি। আমরা তো যখন নিজে ভাঙছি কিনে তখন এই বস্তাগুলা যে দেখতেছি, এটা কি আপনারা নিজে করছেন? হ্যাঁ, নিজে করছি, কিনে আনছি বস্তা। আচ্ছা, চালের বস্তা। পঞ্চায়েত প্রধান আর না, ওগুলো কেউ বিডিও দেয়নি। অফিস থেকে কিছু করে কিছু দেন? দেয়নি, না। আচ্ছা। আমাদেরকে যেটা দেয়নি ওটা আমরা বলবো না। আচ্ছা, আগে বর্ষও আমি আসছিলাম এই জায়গায়, এরকম আমাকে দেয়নি। এই জিনিসগুলো আমি দেখাইছিলাম, আগেবারও আইসে দেখাইছিলাম। কিচ্ছু দেয়নি। তারপরে নেতা আর বড় বড় অধিকারীরা আসছিল দেখা করতে জন্য, কি বলছে ওরা? ওরা তো আসে, যেদিকে ভাঙে না ওইদিকে নিয়ে যায় মেম্বার, হ্যাঁ। যেদিকে ভাঙে ওইদিকে নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে না। ভাঙে এইদিকে দেখায় ওইদিকে।
আচ্ছা। ভাঙে এদিকে দেখায় ওইদিকে, তাহলে কি করে ডিএম দেখবে? আপনাদের সঙ্গে কি কথা হয়েছে এই যে ডিএম ভিডিও আসছিল? না, আসলে ওগুলো আমাদের সাথে কথা কয় না, যেগুলোকে আমরা নিজে যাই নিয়ে আসি ওগুলোই কথা বলতে পারে। আচ্ছা। যেরকম আমি ব্লক প্রেসিডেন্টকে আমরা 3 জন মহিলা যাই নিয়ে আসছি, উনি আমাদের সাথে কথা বলছে, যেটা আমি জেডিওতে দিছি ওই পেপারটাও আমি আর কি সে ব্লক প্রেসিডেন্টকে দিছি। সে গঙ্গা প্রসাদ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান, উনি এসে দেখছে, বলে কি মেম্বারের হাতে নেন। তখন আমি বলছি মেম্বার কি করতে পারে না, মেম্বারকে কি এমনি বসাইছে দিদি? কাজ হয় না, না, কিছু কাজ করে না। আচ্ছা, বৃষ্টি আসলে তো যে অবস্থা দেখতেছি, ঘুমাই না, রাত্রে ঘুম হয় না। আমরা ঘুমাই না। কি নাম আপনার? আমার नाम ममता खातून। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह का हालात है यहाँ पे, और आप सोच सकते हैं कि पिछले साल भी हम लोग आए थे, और हाल फिलहाल में भी हम लोग आए थे, और इसी तरह से बार बार हम लोग इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और यहाँ की स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, नेतागण भी आते हैं, लेकिन लोगों को वादा किया जाता है हो जाएगा, पास हो गया है, बस होने वाला है, फंड नहीं है, और तरह तरह के बहानेबाजी चलता है, लेकिन कार्य नहीं होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर जेडीए द्वारा जो वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो बनाया गया है उसको बचाने के लिए इमरजेंसी में काम हो सकता है। अगर सरकारी अगर ढांचा को बचाने के लिए आप इमरजेंसी काम कर सकते हैं, नदी काट सकते हैं, नदी को डाइवर्ट कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं, तो ये जनता का क्या गलती है? ये जनता भी तो सरकार ही बनाती है, ये लोग भी तो सरकार ये लोग ही बनाते हैं। तो इनकी जो घर है, इनका जो ढांचा है, उसको बचाने के लिए यहाँ के प्रशासन उचित पहल क्यों नहीं कर रही है? और जब हमारे नज़र पे ये पड़ेगी, जब हमारे कैमरे के सामने कुछ भी इस तरह की हरकत दिखाई देगा, उसका विजुअल्स हम लोग साझा करेंगे और प्रशासन को कड़ी शब्दों में आलोचना करेंगे कि जनता का हक के लिए, जनता का जनहित में कार्य किया जाए, और समय समय का खेल ना हो, समय समय के बारे में बात ना हो। इमरजेंसी अगर है तो उसको किस तरह से करना है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई बड़ी हादसा घट जाए, इससे पहले कि लोगों की जान जोखिम में चला जाए, प्रशासन नींद से जागे और उचित पहल करे। यहाँ पे हांसी मारा झोड़ा पे बांध की जरूरत है दोस्तों, और बांध बनना चाहिए, बहुत जल्द बनना चाहिए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों का जो परेशानी है वो दूर हो सके। और जब तक ये हल नहीं होता, जब तक यहाँ पे बांध नहीं बनता, तब तक विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से इस क्षेत्र में आएगा, लोगों के साथ खड़ा होगा और आवाज उनका बुलंद करेगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। आज दुआरे संवाद में आज छोटा मिर्चा बस्ती क्षेत्र से हम लोग जुड़े थे, अगले दिन किसी और क्षेत्र से जुड़ेंगे। कोशिश जारी रहेगा, दुआरे दुआरे जाके जयगो मिरर्स का दुआरे संवाद जारी रहेगा। लोगों की समस्याओं का जो सच्चाई का आईना है, प्रशासन को इसी तरह से हम लोग दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा और इसी तरह से जुड़ते रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।